یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے آج اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلا دیا۔ 3 دن لگے مجھے محنت کی روٹی کھانے کے لیے، یا اللہ۔ اور میرے اس مددگار کی بھی مدد کرنا، اس نیک دل انسان کو ہمیشہ اچھا رکھنا، اس کے دل کی ہر مراد پوری کرنا۔ اس میرے محسن نے مجھے کوڑے مارے، مجھے روٹی کھانے کے لیے دی ہے، اے اللہ اس کا بھلا کرنا، اس کے دل کی ہر مراد پوری کرنا میرے مولا۔ اس کو اتنا عظیم انسان بنانا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے، آمین ثم آمین۔ کون ہے کہاں؟ کیا تم میرے محسن مددگار ہو؟ ہاں، کیا میرا محسن مددگار میرے آس پاس ہی ہے؟ ہاں، اے اللہ کے شکر گزار بندے، اگر کوئی اجازت دے تو ہم تیرے پاس بیٹھ جائیں؟ ہاں آؤ نا، بیٹھو، میرا قریب بیٹھو، آؤ بیٹھو۔ مجھ سے اجازت لے کر تو نے آج میرا رتبہ بڑھا دیا۔ میں اس لائق نہیں ہوں میرے محسن سخی۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں اے اللہ کے بندے۔ مجھے تو تیرے قدموں میں بیٹھنا چاہیے۔ نہیں، اے میرے محسن سخی، یہ سچ ہے، تیرا اعلیٰ کردار تیرے صبر اور ضبط کے مقابلے میں میں تو تیری جوتیوں کے ذرات میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ہوں۔ اے جوہر شناس نابینا فقیر، تیری گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ تو ایک اچھے ماں باپ کی اولاد ہے، اور تو جاہل نہیں ہے، تیرا دل روشن ہے۔ ہاں، جب آنکھوں کے چراغ بجھ گئے تو دل روشن ہو گیا۔ کیا پیدائشی تمہاری آنکھیں ایسی تھی؟ ان آنکھوں سے اندھا ہونے سے پہلے میں عقل سے اندھا ہو گیا تھا۔ لالچ اور گناہوں کا پردہ پڑ گیا تھا میری سوچ پر۔ اے محترم انسان، سچائی کو ماننے والا انسان بہت ہی اونچے کردار کا انسان ہوتا ہے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے اور تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو کل تو بغداد کے خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جا اور انہیں یہ راز بتا کہ کوڑے کھانے کے بعد ہی تو کھانا کیوں کھاتا ہے۔ انہیں اپنی کہانی سنا۔ جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ میری یہ کہانی ماں باپ کے خون سے لکھی ہوئی کہانی ہے، میرے معصوم بیوی کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی کہانی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور ہمارے آخری نبی رسول پاک نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے فرما بردار رہو، ماں باپ کو نہ ستاؤ، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، ان کی بددعا نہ لو، ان کے بڑھاپے کو ذلیل و خوار نہ کرو، ورنہ جہنم کی سزاؤں سے پہلے ہی اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے نافرمان اولاد کو سزا دیتا ہے، اور وہ سزائیں مجھے مل رہی ہیں۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ ماں باپ کا رشتہ اور درجہ کتنا مقدس ہے۔ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ کی شفقت کا سایہ آسمان سے بھی اونچا ہوتا ہے۔
दुनिया में सब कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, लेकिन माँ बाप नहीं मिलती। आज मैं सब कुछ खो चुका हूं, सब कुछ। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। माँ बाप पर किए हुए जुल्म मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरे पाक दामन बीवी की आहें मेरे दिल से निकल रही हैं। उसके आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं। बुरे दोस्तों की सोहबत में मुझे बुरी आदतों, आवारा जिंदगी और दौलत का लालची बनाकर गुनाहों की दुनिया का गुलाम बना दिया था। मैं मिस्र के मशहूर खजूरों के ताजिर आमिर बिन अमीर का बेटा जमाल बिन आमिर हूं। मैं बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। मेरी बीवी नबीला भी बेहद खूबसूरत थी, खिदमतदार थी, मगर मुझे पराई औरतों में दिलचस्पी लेने की आदत दोस्तों की वजह से पैदा हो गई। एक दिन मेरे दोस्त मुझे शहर के जुए खाने की मशहूर रक्कासा हुर्रा से मिलाने मुझे ले गए। हाशिम, ये तो मुझे कहाँ लेकर आया भाई? वहां यहाँ आना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि शहर की मशहूर रक्कासा हुर्रा को जो एक नजर देख लेता है, उसे बार बार देखने की ख्वाहिश उस पर आता है। क्या वो वाकई में इतनी खूबसूरत है? हाँ जमाल, हुर्रा है वो हुर्रा। हुस्न की चिंगारियों से बनी हुई, इश्क के लपकते शोलों में लिपटी हुई, ख्वाबों के गुलशन की महकती कली, जवानी की झूमती हुई आतिशी शराब है वो जमाल। जिसे तुम फांस कर लाए हो, क्या वो शराब पीता है खावर? नहीं, वो शराब नहीं पीता मेरी हसीन रक्कासा हुर्रा। जो नहीं पीता उसे पिलाना बहुत आसान है, मगर जो पीता है उसे ज्यादा पीने से रोकना बहुत ही मुश्किल काम है मेरे महबूब खावर। जमाल मेरा चचा साहब भाई है। मैं अपने चचा आमिर बिन अमीर जमाल के बाप का खजूरों का कारोबार बर्बाद कर देना चाहता हूँ। तुम्हारा काम हो जाएगा खावर। और कोई ख्वाहिश है? हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जमाल और उसके खानदान को बर्बाद करके रख दूं, उसके शान को मैं खत्म कर दूं, उसके माँ बाप का बुढ़ापा रास्ते की धूल बन जाए और उसकी खूबसूरत बीवी दर दर भटके। खावर, अगर किसी घर को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस घर की कमजोर दीवार को गिरा देना चाहिए। घर की बाकी दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। इसीलिए तो मैं इस कमजोर दीवार को तेरे हुस्न के हुजूर में ले आया हूँ गुर्रा। अपने खूबसूरत बीवी के होते हुए भी जमाल पराई औरतों में बड़ी दिलचस्पी लेता है। जमाल और उसके खानदान को तो मैं बर्बाद कर दूंगी, उसके महल पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, मगर मुझे क्या मिलेगा? मेरा हिस्सा क्या होगा? मेरे हुस्न जवानी के गुनाहों की कीमत क्या होगी? ये तो बताओ सौदागर खावर। तुम्हें मालिक होगी नहीं दिलरुबा हुर्रा। तुम इस शहर की बदनाम तरीन आबरू बाख्ता रक्कासा हो और मैं इस शहर का बाइज्जत ताजिर हूं,
मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें इस बदनामी, बदचलनी और बेइज्जती की जिंदगी से निकालकर इज्जत की जिंदगी बख्शूंगा। बोलो, क्या तुम भी ये सौदा मंजूर है? मंजूर है मेरी इज्जत के सौदागर, मंजूर है। सब्र करो जमाल, बड़ी इज्जत वाले बड़े बड़े सौदागर रक्कासा हुर्रा की गलियों के चक्कर काटते हैं। हाँ, मगर कब दीदार होंगे हुर्रा के? आखिर वो कब आएगी और कितना इंतजार करना होगा? मेरे हसीन मेहमान, बस इंतजार खत्म हुआ। ज़हमत इंतजार की ये हुर्रा आपसे मुआफी चाहती है मेरे हसीन मेहमान। मिस्र की बेमिसाल रक्कासाए हुस्नो शबाब के हुजूर में जमाल बिन आमिर हदिया सलाम पेश करता है। कबूल फरमाकर इज्जत बख्शे। शुक्रिया है मेरे हसीन हुस्न के शदाई, मेरे रक्स के कदरदान। लीजिए, कबूल कीजिए जाने मोहब्बत। ये शराब है ना? नहीं, इसे पीना तो दूर, इसे हाथ लगाना भी गुनाह है। हाथ ना लगाओ, होंठ लगा लो। या फिर निगाहों से पी लो। शीशे के पैमाने से नहीं तो जिस्म के मैखाने के साए में पी लो। जिस्म का मैखाना? हाँ। मैखाना है, पैमाना है और दिल दीवाना भी है। हुस्न की शमा पर चलने को अब परवाना भी है। लीजिए मेरे हसीन मेहमान, जाने मोहब्बत दीजिए, दीजिए ना। पियो जमाल, पियो। पियो मेरे दोस्त। मैं तुम पर अपनी सारी दौलत लुटा डालूंगा। शाबाश मेरे यार, पियो पियो पीजिए और पीजिए। पियो मेरे यार। ये सब मेरे हुर्रा के लिए। बेटा, बेटा जमाल, ये क्या कर रहे हो? ये दौलत अमानत है, ये अशरफियां खैरात ज़कात है बेटे। ये मोहताज गरीब यतीमों के लिए है बेटे। इस अमानत में खयानत न करो बेटे। अल्लाह नाराज होगा। ज़कात खैरात जरूरतमंदों का हक है, वो न ले जाओ बेटे। तुम ये दिरहम ले जाओ और दिनार ले जाओ। अम्मी जान सही कह रही हैं। ये इतनी सी अशरफियां, ये अशरफियां तो मेरी शान के खिलाफ हैं। आखिर ये दौलत तुम्हें किस काम के लिए चाहिए? ये मत पूछिए। और फिर दौलत तो दौलत ही होती है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, ज़कात क्या और खैरात क्या। अल्लाह नाराज होगा बेटे। रद्दे रद्दे। हाँ, बेटे बेटे अरे बेटे सुनो मेरी बात।
हुर्रा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे कायनात हो। हुर्रा, 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 हुर्रा। अब तो 7 दिन हो गए बेटी। बेटा जमाल अब तक क्यों नहीं आया? उस दीनो ईमान की दुश्मन हुर्रा को खुदा समझे, मेरे बेटे को गुमराह कर दिया उसने। मेरा शौहर मुझसे छीन लिया, बेचारा मुझसे छीन लिया। बेटी, कोई किसी को नहीं छीन सकता, कोई किसी को नहीं छीन सकता। अगर इंसान खुद अच्छा बुरा समझे तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बिगड़ने में तुम्हारे लाड और प्यार का बहुत ही बड़ा हाथ है बेगम। कोई भी माँ अपनी औलाद को बर्बाद करना चाहेगी? नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी, लेकिन जाने अनजाने में माँ बाप औलाद की जिन छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों को उसकी मामूली बातें समझकर उसे बेपरवाही से देखते, तो वही बातें आगे चलकर औलाद को बेपरवाह, बदतमीज और गुस्ताख बनाकर बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सच कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं हुर्रा के मकान पर जाऊं? बेगम, ये क्या कह दिया आपने? क्या कह दिया आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया बेगम, जो उस बदनाम तरीन इलाके में आप जैसी शरीफ और मौजीज खानदान की बेगम उस तवायफ जाती हुर्रा से अपना बेटा मांगने जाएंगी? माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। बेटे की मोहब्बत और अपनी ममता में मैं तो ये भी भूल गई कि शरीफ खानदान में तो उस जगह का नाम लेना भी बेइज्जती समझते हैं। हमारे खानदान की इज्जत अब उस मंजिल पर आ गई है जहां अपने भटकते बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे अपने बुढ़ापे को जलील करना पड़ेगा। मैं उस बदनाम गली से गुजरकर अपने बेटे तक जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। माफ कीजिए जनाब, आप बताएंगे रक्कासा हुर्रा का बाला खाना कहाँ है? ये उम्र और बाला खाने का शौक, और वो भी दिन के उजाले में। अरे भैया, इंसान को बिगड़ते क्या देर लगती है, और जब बिगड़ जाए तो दिन क्या और रात क्या है? और वो जालिम हुर्रा चीज भी ऐसी है, देखते नहीं? मशहूर ताजिर आमिर बिन आमिर का बेटा जमाल बिन आमिर रक्कासा हुर्रा के तलवे चाट रहा है।
یہ بڑا میاں اسی کے چکر میں آئے ہوں گے. کیا کہا؟ عامر بن امیر مصر کے مشہور تاجر، رئیس شہر، یعنی جمال کے والد بزرگوار میرے دروازے پر کھڑے ہیں. ضعیف العمر عامر بن امیر، جمال کے والد. کیا آپ جانتے نہیں آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا مانگنے آئے ہیں؟